Hello friends, subject of this video is history and the chapter we are doing is first chapter, the First War of Independence 1857. We will be doing important textual questions. Our first question, what was the nature of revolts against the British before the First War of Independence? There was resentment against the British rule and there were rebellions in some part or other of the country. But these were local, scattered and isolated. They did not pose serious threat. However, they established a local tradition of struggle against the foreign rule. विदेशी रूल या शासन के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा तो था और कहीं कहीं आंदोलन या विद्रोह होते भी थे, लेकिन ये लोकल थे, मतलब किसी एरिया में एक जगह पे होते थे, कभी कभी होते थे, तो इसलिए इससे कुछ सीरियस खतरा नहीं था ब्रिटिश रूल को। लेकिन इन्होंने एक रिवाज बना दिया विदेशी रूल या शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने का या विद्रोह करने का। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज द वॉर ऑफ 1857 hailed as the first war of independence? The first war of independence in 1857 was culmination of opposition to British rule in which millions of artisans, peasants and soldiers participated. It shook the very foundation of the British rule. Hence it is known as the First War of Independence. 1857 की जो पहली आज़ादी की लड़ाई थी उसमें लाखों किसानों, कारीगरों और सैनिकों ने भाग लिया था। इससे ब्रिटिश रूल की यहाँ पर नींव हिल गई और इसलिए इसे पहली आज़ादी की लड़ाई या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन 3, mention two political causes of the first war of independence. I am giving here 4 causes because all of them are important. The political causes of first war of independence are the policy of expansion, disrespect shown to Bahadur Shah Zafar, treatment given to Nana Sahib, absentee sovereignty. पहली आज़ादी की लड़ाई के पॉलिटिकल कॉजेस इस तरह थे। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन मतलब ब्रिटिश अपना किसी तरह से कोई भी तरीका अपना के अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र और नाना साहब के साथ बुरा व्यवहार किया था। एब्सेंटी सॉवरेनिटी का मतलब है कि अंग्रेज़ हज़ारों मील दूर रह के इंग्लैंड से भारत पे राज कर रहे थे। क्वेश्चन 4, नेम द 4 ways in which the British expanded their territorial power in India. The 4 ways in which British expanded their territorial power in India were: first, by outright wars; second, by the system of subsidiary alliance; third, by adopting the doctrine of lapse; fourth, on the pretext of alleged misrule. 4 तरीके जिससे ब्रिटिश अपना राज्य बढ़ा रहे थे। पहले तो सीधा लड़ाइयाँ करके, आउटराइट वॉर्स करके। दूसरा, सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस जिसमें मदद के बहाने लोकल रूलर के राज्य का कंट्रोल वे अपने हाथों में ले लेते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब जिसका अपना कोई वारिस नहीं होगा तो उस रूलर का राज्य वो ले रहे थे। और चौथा है प्रीटेक्स्ट ऑफ अलेज्ड मिसरूल, मतलब ये बहाना बनाते थे कि यहाँ पर रूल बराबर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन 5, what was the subsidiary alliance? The subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley, due to which some Indian states were brought under British control without actually annexing them. Under this system, the Indian rulers who agreed to subsidiary alliance, they had to accept following conditions. First, accepted British as the supreme power. Second, surrendered their foreign relations to the East India Company and agreed that they would not enter into any alliance with any other powers and would not wage wars. Next point, accepted a British resident at their headquarters and agreed not to employ any European in their service without consulting the company. Agreed to maintain British troops at their own cost and virtually lost their independence. सब्सिडरी अलायंस एक तरह का समझौता है इंडियन रूलर या शासक और
ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया या यहाँ पर इंडिया में स्टार्ट किया। इसके हिसाब से बगैर लड़ाई किए, बगैर हथियाए वो राज्य उनके कंट्रोल में आ जाता था, और जो शासक ये सब्सिडरी अलायंस करते थे या ये एग्रीमेंट करते थे तो उन्हें कुछ शर्तें माननी होती थी, जो थी ब्रिटिश को अपने से श्रेष्ठ पावर मानना, अपना विदेशी नीति या फॉरेन रिलेशंस वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे देना, और ये मानना कि वह किसी दूसरे पावर के साथ कुछ अलायंस या समझौता नहीं करेंगे और लड़ाई नहीं करेंगे। एक ब्रिटिश रेसिडेंट या ब्रिटिश ऑफिसर को अपने हेडक्वार्टर्स पे रखना, कंपनी को कंसल्ट किए बगैर किसी यूरोपियन को सर्विस पे नहीं रखेंगे, और ब्रिटिश सेना का खर्च वो खुद उठाएंगे। तो इस तरह उन्होंने लगभग अपना आज़ादी खो दी या इंडिपेंडेंस गंवा दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम 2 इंडियन स्टेट्स ब्रॉट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल यूजिंग सब्सिडियरी अलायंस। The 2 Indian states brought under British control using subsidiary alliance were Hyderabad and Awadh. Question 7. Explain the term Doctrine of Lapse. Name the 2 states annexed by British using Doctrine of Lapse. According to Doctrine of Lapse, if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. That is, it would come under company's territory in India. Lord Dalhousie introduced the doctrine of lapse, and some of the states annexed using it were Jhansi, Satara and Nagpur. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से किसी भी इंडियन रूलर, शासक का, उसका वारिस उसका बेटा ही बन सकता है, उसका गोद लिया हुआ बेटा नहीं, उसका खुद का बेटा। अगर उसकी मौत हो जाती है और उसका बेटा नहीं है तो वो राज्य कंपनी के राज्य में जुड़ जाएगा, कंपनी का जो इंडिया में राज्य थे उनके साथ जुड़ जाएगा। लॉर्ड डलहौसी ने इंडिया में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया, और कुछ स्टेट्स जिन्हें हड़प लिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से वो थे झांसी, सातारा और नागपुर। क्वेश्चन 8, हु वॉज नाना साहेब? वॉट वॉज हिज मेन ग्रीवियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश? Nana Sahib was the adopted son of Bajirao II, the last Peshwa. His main grievance was that British refused to grant him the pension they were giving to Bajirao II. He was forced to live at Kanpur, far away from his family seat at Pune. नाना साहेब बाजीराव II, जो लास्ट पेशवा थे, उनका गोद लिया हुआ बेटा था। उन्हें अंग्रेज़ों से ये शिकायत थी कि जो पेंशन वो बाजीराव II को दे रहे थे वो उन्होंने देने से मना कर दिया, और उसे कानपुर में रहना पड़ा, जो उनकी फैमिली सीट पुणे से दूर था। क्वेश्चन 9, विच पॉलिसी वॉज यूज्ड बाय लॉर्ड डलहौसी अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई? वाई डिड रानी लक्ष्मीबाई बिकम अ बिटर एनिमी ऑफ द ब्रिटिश? The policy used by Lord Dalhousie against Rani Lakshmibai was Doctrine of Lapse. When the ruler of Jhansi died in 1853 without natural heir, widowed Rani was pensioned. Their adopted son Anand Rao was not considered as the lawful successor to the throne. Hence, Rani Lakshmibai became bitter enemy of the British. लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी यूज़ की। 1853 में जब झांसी के शासक की मौत हो गई तब उनका अपना कोई वारिस नहीं था, उनका अपना बेटा नहीं था। अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई को पेंशन दी, लेकिन उनके गोद लिए हुए बेटे आनंद राव को उन्होंने कानूनी वारिस मानने से इनकार कर दिया। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों की दुश्मन बन गए। Question 10. State 2 announcements which adversely affected the Mughal dynasty in India. 2 announcements which adversely affected Mughal dynasty in India were: in 1849, Lord Dalhousie announced successors of Bahadur Shah Zafar will not be permitted to use Red Fort as their palace. Second, in 1856, Lord Canning announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, his successors would not be allowed to use imperial titles with their names and would be known as mere princes.
दो अनाउंसमेंट या दो ऐलान जिनका बुरा असर मुग़ल साम्राज्य में पड़ा वो हैं, पहला था 1849 में लॉर्ड डलहौसी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह ज़फ़र के जो वारिस हैं उन्हें रेड फोर्ट अपना महल करके यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ऐलान किया कि बहादुर शाह ज़फ़र की मौत के बाद उसके वारिस अपने नाम के साथ शाही पदवी जैसे बादशाह वगैरह नहीं लगा सकते, वे सिर्फ राजकुमार या युवराज करके जाने जाएंगे। क्वेश्चन 11, मेंशन टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ अवध। In 1856, Lord Dalhousie annexed Awadh on the pretext of alleged misrule. The consequences were people had to pay higher land revenue, additional taxes on food, houses and ferries. Second, dissolution of Nawab Awadh's army and administration threw thousands of nobles, officials and soldiers out of jobs. 1856 में लॉर्ड डलहौसी ने ये बहाना बनाकर अवध हड़प लिया कि वहाँ पर बराबर से रूल नहीं हो रहा है। इसके दो नतीजे हम यहाँ पर बता रहे हैं। लोगों को ज़्यादा टैक्सेस भरने पड़ रहे थे, ज़मीन पर, घर पर, खाने पर, आने जाने पर, और नवाब की आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को डिज़ोल्व कर दिया गया। मतलब उनकी जो फौज थी और जो राज्य का कार्यभार संभालते थे उन ऑफिसर्स को पद से हटा गया। तो हज़ारों लोग जैसे कि रईस, अधिकारी और सैनिक वे बेरोज़गार हो गए। क्वेश्चन 12, स्टेट टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसबैंडिंग ऑफ आर्मीज ऑफ द एनेक्स्ड स्टेट्स बाय द ब्रिटिश। जो राज्य अंग्रेज़ों ने हड़प कर लिए थे वहाँ पर वहाँ की आर्मी को उन्होंने बर्खास्त कर दिया था। तो इनके नतीजे क्या निकले? सोल्जर्स या सैनिकों ने अपने जॉब्स गंवा दिए और वे बेरोज़गार हो गए। उनके गांव में अब अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था या उनके राज्य में अंग्रेज़ों के शासन चल रहा था और लोगों को ज़्यादा टैक्सेस भरने पड़ रहे थे। द आंसर इज़ सोल्जर्स लॉस्ट देयर जॉब्स. They had to pay higher taxes in their homelands which were under British rule. 13th question, give the meaning of absentee sovereignty. Why was it resented by the Indians? Absentee sovereignty means that India was being ruled by the British government from England at a distance of thousands of miles. Indians felt that India's wealth was being drained to England and not utilized for their welfare. This was resented by the Indians. Absentee sovereignty का मतलब है अंग्रेज़ भारत से हज़ारों मील दूर रहकर इंग्लैंड से भारत पे राज चला रहे थे और इंडिया का जो ख़जाना था वो सारा इंग्लैंड की तरफ जा रहा था और उनके भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो इंडियंस को, भारतीयों को इस बात का बहुत दुख और गुस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द एप्रीहेंशंस ऑफ द इंडियंस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज? इन रेलवे कंपार्टमेंट्स पीपल ऑफ हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट वर मेड टू सिट side by side. People believed that British had introduced such practices to defy their caste and religion. रेलवे कंपार्टमेंट में ऊंची जाति के लोग और नीची जाति के लोग साथ साथ बैठ सकते थे। तो लोगों को यह लगता था कि अंग्रेज़ ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे उनका धर्म और जाति भ्रष्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू सोशल रिफॉर्म्स एडवोकेटेड बाय द ब्रिटिश which affected the religious traditions of the Indian people. Reforms like abolition of sati in 1829 and introduction of the Widow Remarriage Act 1856 were to improve the conditions of the Indians, but people's feelings were not taken into account, so they were not welcome as they affected the religious traditions of the Indian people. सती प्रथा को ख़त्म करना और विधवाओं के दोबारा शादी का कानून, अंग्रेज़ ये समाज के सुधार लोगों के भले के लिए कर रहे थे, पर ऐसा करते हुए उन्होंने लोगों की भावनाओं के बारे में नहीं सोचा, इसलिए लोगों ने इसका स्वागत नहीं किया क्योंकि ये उनके धार्मिक रिवाजों के खिलाफ थे।
Friends, we will do more questions from this chapter in next video. Bye bye till then. Thank you for watching.